Hello students, welcome once again to the web classes. So in the previous lecture we understood how to give the journal entries based on dishonor of bill. When bill is dishonored and the person who accepted the bill became insolvent, then which kind of entries would be passed, that we already seen. Now in this lecture we are going to have some new illustrations based on the same topic. So let's go without wasting any further time. Okay, so in case of dishonor of bill, the acceptor of bill can propose to you a new option. Which kind of options? So he may ask for some delayed time, or he will may request for a new bill. Okay, so a new bill can be formed on the request of acceptor of bill. क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल कि अगर 3 मंथ का बिल लिखा गया था, है ना, अब जिसने एक्सेप्ट किया है वो इस पोजीशन में नहीं है कि पैसा पे कर सके, है ना, कोई भी हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई हो, लेकिन जेन्युइन बंदा है, तो वो आपके पास आता है, आपसे एक रिक्वेस्ट करता है कि भैया वो जो पुराना बिल है मैं उसे नहीं भर पाऊंगा, प्लीज़ आप मेरे लिए वो वाला बिल कैंसिल कीजिए और नया बिल बना दीजिए. ठीक है, सो एट दैट टाइम you can cancel the old bill and you can make a new bill. That is called renewal of bill. Renewal of bill. Okay, तो जो नया बिल बनाया जाएगा क्या उसकी अमाउंट सेम रहेगी? नो, उसकी अमाउंट सेम नहीं रहेगी. क्यों? उस पर एक्स्ट्रा ऐड होगा इंटरेस्ट. आप जितने महीने आप उसे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो या जितने भी डेज का आप उसे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, उस टाइम ड्यूरेशन का आप उससे चार्ज कर सकते हो इंटरेस्ट. अब वो कौन से रेट से चार्ज करना है, दैट इज अप टू यू. ओके, दैट इज अप टू द बिल होल्डर. ओके, नाउ होपफुली ये समझ में आ गया है. अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11, आई एम रीडिंग इट. On 1/7/16, Krishita drew a 3-month bill of rupees 75,000 on Salim. Okay, so Krishita will write bills receivable account debit to Salim account, and Salim will pass entry Krishita account debit to bills payable account, which Salim accepted and returned on the same day. Before the maturity date, on 29/2016, Salim requested Krishita to cancel the old bill and draw a new bill of rupees 60,000. Is that clear? मतलब देखो बिल जो है वो कितने महीने का था, सो 3 मंथ का बिल था, 1/7 को रखा गया था, तो मतलब 8, 9, 10, सो 10th मंथ को इस बिल की मैच्योरिटी जो है वो आने वाली थी. बट बिफोर दिस डेट, मीन्स बिफोर अक्टूबर, Salim came to Krishita and asked for the new bill. And the what he said, so on 29/2016, Salim requested Krishita to cancel the old bill, कि old bill जो हमारा है वो प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए और एक नया 3 मंथ का बिल जो है वो बना दीजिए. Now Krishita accepted this request. On 25/9/2016, Krishita collected cash rupees 15,000 towards the old bill and rupees 1800 towards the interest and drew a new 3-month bill. तो कृषिता ने क्या किया, कृषिता बहन ने 15,000 इमीडिएटली ले लिए कि भैया थोड़ा बहुत तो पैसा देना पड़ेगा. सो 15,000 कृषिता ने ले लिए. बचे हुए जो पैसे थे उस पर एक नया बिल बना के दिया 60,000 का और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया 1800. सो जो 3 मंथ का एक्स्ट्रा पीरियड दिया जा रहा है, फॉर दैट कृषिता इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1800 for 3 months. Is that clear to you? Okay, let's read it further. Which Salim accepted and returned on the same day. Before the day of maturity, Salim was declared insolvent. Okay, Salim जो है वो लास्ट में insolvent declare हो गया. As on 20/11/2016, the receiver paid the money at 75 paisa per rupee on 6/12/2016. Pass necessary journal entries in the books of both the parties. Now this is going to be a difficult task for you. How? First of all write the entry from the beginning. In the books of Krishita will write bills receivable account debit to Salim account, and Salim will write
Krishita account debit to bills payable account. Okay, so see the first entry, bills receivable account debit to Salim account 75,000, and in the books of Salim, Krishita account debit 75,000 to bills payable account 75,000. Okay, आगे रीड कीजिए उसी सम को. बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मतलब 29/2016 को सलीम कृषिता के द्वार पे पधार गया, एंड सलीम रिक्वेस्टेड कृषिता टू कैंसिल द ओल्ड बिल. सो लेट्स कैंसिल इट. कैंसिल करते हैं तो ये एंट्री जो है वो हो जाती है रिवर्स, मीन सलीम जो है वो हो जाएगा डेबिट एंड बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट. सो एंट्री वुड बी पास्ड लाइक Salim account debit to bills receivable account 75,000 and 75,000. Similarly, Salim bhaiya will write bills payable account debit to Krishita account 75,000 and 75,000. Hopefully, it makes sense to you. Now, अब क्या हुआ आगे? आगे ऐसा हुआ कि उन्होंने एक नए बिल की रिक्वेस्ट की है ना, टू कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ न्यू बिल ऑफ ₹60,000. बोले 60,000 के एक नया बिल लिख दो. कृषिता ने जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया 25/9/2016 के दिन, एंड कलेक्टेड कैश 15,000 टुवर्ड द ओल्ड बिल एंड 1,800 टुवर्ड इंटरेस्ट एंड ड्रू अ न्यू 3-month बिल ऑफ ₹60,000. तो ये बिल की अमाउंट कितनी हो गई? 60,000 प्लस 1,800 कितना हो गया? ये हो गया 61,800. ये टोटल अमाउंट हो गई. 15,000 आपको कैश मिले तो एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी, नहीं सॉरी, ये मेरे ख्याल से इंटरेस्ट के पैसे कैश लिए गए ना. 15,000 टुवर्ड द ओल्ड बिल एंड 1,800 टुवर्ड इंटरेस्ट. ओके, 1,800 और 15,000 ये कैश में कलेक्ट किया गया है. तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 16,800 टू सलीम अकाउंट 15,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,800. ओके, एंड सलीम विल राइट, सलीम पेमेंट की एंट्री करेगा तो सलीम विल राइट कृषिता अकाउंट डेबिट 15,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,800 टू कैश अकाउंट 16,800. क्लियर है? नाउ इसके बाद नया बिल जो लिखा गया, द अमाउंट ऑफ बिल वाज 60,000. हाउ मच? 60,000. सो एंट्री वुड बी अगेन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सलीम अकाउंट. यू कैन सी दिस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Salim account 60,000. So hopefully it's clear to you. Now on the same day Salim will write Krishita to bills payable. इस टाइप की एंट्री होगी, है ना. ये देखिए आप, हाँ अब मेरे ख्याल से विजिबल होगा. सो कृषिता अकाउंट डेबिट 60,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 60,000. सो होपफुली इट्स क्लियर टू यू. नाउ आफ्टर द रिक्वेस्ट ऑफ न्यू बिल व्हाट हैपेंड? On the date of maturity, written on the same day, before the date of maturity, Salim declared insolvent. Okay, Salim जो है वो डिक्लेयर हो गया insolvent, मतलब उसने हाथ अद्धर कर दिए कि आई हैव नथिंग, जो लेना हो ले लो, है ना. तो उसके रिसीवर मतलब जो कोर्ट ने एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया होता है उसके एसेट को सेल करने के लिए और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने वाले पर्सन को कहा जाता है रिसीवर. द रिसीवर ऑफ सलीम पेड 75 पैसा पर रुपी, 75 पैसा पर रुपी एज अ डिविडेंड. नाउ व्हाट इज 75 पैसा? सो हाउ मच द अमाउंट ऑफ बिल वाज? सो अमाउंट ऑफ बिल वाज 60,000. फ्रॉम 60,000 you are going to receive 75 पैसा, मीन 75%. तो 75% आपको मिलेगा. इट मीन्स 45,000. हाँ, 45,000 जो है वो आपको रिसीव होगा. तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो आपको बिल कैंसिल करना होगा, तो कैंसिलेशन की रिवर्स एंट्री होगी सलीम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ये हुआ कैंसिल. अब आपको पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, 15,000 नहीं मिले सो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 15,000 to Salim account 60,000. Is that clear? Now what Salim will pass? So Salim will pass entry first of all for the cancellation of bills payable account debit to Krishita account 60,000 and finally for the payment Krishita account debit 60,000 clear to bank account 45,000 and जो पैसा वो नहीं भरा 15,000 उसे कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा.
ठीक है। ये सिर्फ अभी के लिए इतना ही याद रखो कि जो पैसा जो सलीम नहीं भर रहा है या नहीं पे कर पा रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। क्लियर? 12th में आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में एक नया चैप्टर मिलेगा। क्लियर है? तो 12th की बात 12th में करेंगे। हाल फिलहाल मेरे ख्याल से ये जर्नल एंट्री जो है आपको क्लियर हो चुकी है। अगर ये जर्नल एंट्री आपको क्लियर हो चुकी है तो ऑलमोस्ट यूँ समझो इस चैप्टर में जितने भी टाइप के बिल थे वो सारे बिल और सारी जर्नल एंट्रीज हमने पूरी की। एक होता है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? मान लो कि दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति है श्रवण कुमार और दूसरा व्यक्ति है मान लो बिट्टू भैया, है ना। अब श्रवण कुमार को पैसे की ज़रूरत है 10 लाख रुपए की, है ना, और बिट्टू भैया को भी ज़रूरत है 5 लाख रुपए की, या फिर छोटा मोटा पैसा चाहिए, है ना, समझो। तो क्या हुआ, श्रवण कुमार बिट्टू पे एक बिल लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही। बिट्टू भैया उसे एक्सेप्ट करेंगे, श्रवण कुमार के पास 10 लाख रुपए का बिल आ गया, ठीक है। वो बैंक में जाएंगे और वो बैंक में जा करके उस बिल को क्लियर करा लेंगे। तो बैंक अपना चार्ज काट लेगी जो भी है, मान लो कि 3 महीने का मैच्योरिटी पीरियड है ना। तो बैंक में गए, 10 लाख रुपए का बिल प्रेजेंट किया, बैंक ने 3 महीने का ब्याज काटा और पैसे दे दिए आपको आपके बैंक अकाउंट में या फिर कैश, ठीक है। उसमें से आधे पैसे रख लिए बिट्टू ने और आधे पैसे रख लिए श्रवण ने। तो इसे कहते हैं अकोमोडेशन बिल। अब इनको पैसा भरने की टेंशन कब लेनी है? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद बिट्टू और श्रवण दोनों मिल करके पैसे का जुगाड़ करेंगे। समझ पा रहा है? तो ऐसे बिल को कहा जाता है अकोमोडेशन बिल। मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ सेलिंग या परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ हो तो ही बिल लिखा जाए, है ना। ऑल्दो सभी को ये फैसिलिटी नहीं मिलती, थोड़ा बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। ओके, सो अकोमोडेशन बिल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो लिव इट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 9 to 11। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो जाता है। एक और लेक्चर में हम देखेंगे जो 1 लाइनर बिल, मतलब एक छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं ना बिल के, ये तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन था फ्रॉम इश्यू टू मैच्योरिटी। तो यहाँ अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि छोटे छोटे एंट्रीज कैसे दी जाती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।